Assalamu alaikum everyone. Today we are again live with you guys at your Rehnamai with another exciting session of the about the art of job hunting. And today we have our honorable guest with us, Gazanfar Iqbal, who's joining us again for the second session. Uh, इनको हमने दोबारा इसलिए बुलाया है बिकॉज he is so experienced with a 12-year experience in both entrepreneurship and a regular job. So he has all of that. He has gone through all of those processes that probably most of us will be going through and will be seeking guidance through. So we have and with for you guys an experienced person के जो आपको tips tricks hacks सब बताएं. एंड अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे टिल वी हैव एन ऑडियंस बिल्ड अप जहाँ पे हमारे पास थोड़े से और लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाएं कन्वर्सेशन में एंड देन आई विल स्टार्ट विद गजनफर उनसे पूछेंगे कि व्हाट हैज ही उनके पास आज हमारे स्टोर में क्या है. ये जो हम सीरीज कर रहे हैं for this week that we had allocated for jobs and careers, we started with how to how to choose the right career, and then we went on to talking about how to build your profile, how to build a great profile, the profile that you dream of having. जिस पे कल हमारे साथ मदीहा थी जिन्होंने आपके साथ बात की. शी टोल्ड यू गाइज अबाउट लिंक्डइन सीवी एंड शी वाज वेरी वेरी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो है वो आप अपनी सीवी बना सकते हैं, उसके डूज क्या हैं, उसके डोंट्स क्या हैं. टुडे वी हैव गजनफर इकबाल जो कि बात करें कि व्हेन यू आपकी जब प्रोफाइल बन गई है, जब आपकी व्हेन यू हैव योर प्रोफाइल राइट एट योर टेबल इन योर लैपटॉप, हाउ टू यूज़ इट टू योर बेस्ट एडवांटेज. आपने किस तरह से किन जॉब्स की तरफ जाना है, वो कौन सी जॉब्स हैं जो आपकी प्रोफाइल को फिट मैच करती हैं, दैट यू अप्लाई एंड यू गेट टू द राइट प्लेस दैट यू आर सपोज टू बी एट अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन दैट यू हैव अचीव्ड. एंड तो इसमें कुछ ऐसे भी होता है कि व्हेन यू आपकी एक सर्टेन क्वालिफिकेशन होती है बट यू आप एक जैकपॉट यू आप कर लेते हो विद the tips and tricks that Zanfar will be talking about, that you get an amazing job and ऐसे भी हो जाता है. And then if you अगर आपने सही तरीके से job hunting नहीं की है, even if you have a really great profile, you might end up not having a good job. We have I think we have enough viewers right now and it's 7:30. I will start with Gazanfar ka interview. I'm gonna tell you guys who Gazanfar is again. He's right now working at Kareem as a country head manager. Country head, how do I say it? Country head, corporate sales manager, right? And then Gazanfar Right. will tell you guys further about himself. Thank you so much, Ravel, and thank you, Renomai, for inviting me over again. I think this is an interesting topic. And जिस तरह से आपने build up किया कि पहले career के ऊपर बात हो गई, फिर how to build up your profile, and obviously after that it comes to job hunting, which is essentially what those two subjects were about. So a bit of introduction again about myself. I've been with the corporate sector for over 12 years. I have worked in the telecom, FMCG sector. Currently, I'm working with Kareem as a country head corporate sales in Pakistan. And that's pretty much about it. Detail mein, I think you have to watch my other session. In terms of the job hunting, yes, I mean, it can be frustrating at times because बहुत कम होता है, hardly it happens that you apply for a job and you are called for the interview and you get selected and that's it. It's usually filled with a lot of anxiety, a lot of stress, a lot of disappointments. So you should be mentally prepared that it's a long road. Obviously, you can get lucky, but in your mindset, you should be prepared in a way that itna aasan ye nahi hai. But we can make it easy. Obviously, there are few tips and tricks. There are few ways to structure your job strategy.
and then you can move forward. तो आज उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बेहतरीन. सो गज़नफर, मैं स्टार्ट आपसे करूँगी कि स्टार्ट मेरा क्वेश्चन होगा आपसे कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो इन बंदे को अपने आप से पूछने चाहिए और अपनी प्रोफाइल देखकर जॉब हंट करते वक्त वो कौन से ऐसे दोज पॉइंटर्स हैं जो बंदे को ध्यान में रखने चाहिए व्हाइल लुकिंग फॉर अ जॉब. थैंक यू. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. सो सबसे पहले ऑब्वियसली जॉब स्ट्रेटेजी बनाने के लिए यस देयर आर फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ दैट कैन हेल्प यू जीरो इन ऑन द राइट जॉब सर्च क्राइटेरिया. अभी आई एनकरेज यू टू राइट दिस आंसर्स आउट ऑन अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, और इनको आप रैंक भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी वाइज, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे. बाद में आप ऑब्वियसली दिस सेशन विल बी रिकॉर्डेड, यू कैन लिसन टू इट एज वेल. बट द की क्वेश्चंस आर, सबसे पहले तो है आपकी स्ट्रेंथ्स, की स्ट्रेंथ्स. व्हाट आर योर की स्ट्रेंथ्स? नोट देम डाउन. देन व्हाट आर यू रियली गुड एट? स्ट्रेंथ्स तो एक अलग चीज है, स्किल से रिलेटेड है. इसके अलावा व्हाट रियली यू थिंक यू आर गुड एट, और फिर उसके बाद व्हाट डू यू रियली वांट टू बी गुड एट. फिर विच इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, विच इंडस्ट्रीज यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन. फिर आ जाती हैं विच इंडस्ट्रीज डू यू थिंक इन कमिंग फ्यूचर आर पॉइज्ड फॉर ग्रोथ. यानी कि कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो आपको लगता है जो आगे फ्यूचर में ग्रो करेंगी. जिस तरह आप पोस्ट कोविड के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं. काफ़ी इंडस्ट्री जो आपको पहले लगता था बहुत सॉलिड है, अपेरेंटली शायद वो अब इतनी सॉलिड ना हो. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछने के लिए. फिर फंक्शनल एरियाज कौन से हैं जिसके अंदर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, और उन फंक्शनल एरियाज की भी ग्रोथ को देखें कि क्या वो फंक्शनल एरियाज ग्रोथ कर रहे हैं. लेट्स सपोज फंक्शनल एरियाज से मेरी मुराद है मार्केटिंग है, सेल्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बिजनेस डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है. सो किस में आप इंटरेस्टेड हैं और क्या एरिया आपको लगता है कि इसकी ग्रोथ हो सकती है. फिर व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू आर इंटरेस्टेड इन. कंपनी का उसमें साइज आ जाता है, कंपनी का कल्चर आ जाता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं. और फिर जियोग्राफिकल प्रेफरेंसेस भी आ जाती हैं कि उसमें आपकी कोई लिमिटेशंस हैं, और आर यू ओपन टू मूव टू एनी लोकेशन व्हाटसोएवर. इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा डिटेल में पिछले सेशन में बात किया था, मेट्रोपॉलिटन सिटीज और स्मॉलर सिटीज पे. एंड देन व्हाट टाइप ऑफ रोल इंटरेस्ट यू द मोस्ट. जब आपने ये सारे क्वेश्चंस जॉट डाउन कर लिए तो दिस information will help you build out your job search strategy and also help you with formulating your target company list. तो इन चीज़ों के साथ this will be basically your baseline, जहाँ से आपका ये पहला स्टेप होगा, जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अपनी जॉब हंटिंग. सही हो गया, ठीक हो गया. सो यू टोल्ड अस अबाउट दोस क्वेश्चंस दैट दोस आंसर्स दैट वन शुड आंसर कि भाई जॉब हंटिंग से पहले. अच्छा, उसमें जिस तरह से हमने कल बात की थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट आई वांट टू गेट योर ओपिनियन एज वेल एंड योर टिप्स एज वेल ऑन इट कि कैरियर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं एंड किस तरह से उनको एनहांस बंदा कर सकता है. जी बिल्कुल. कैरियर मार्केटिंग के आप समझ लें, कैरियर मार्केटिंग की कुछ टूल्स होते हैं जिनकी आप ऑप्टिमाइजेशन करके अपनी ट्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं. ऑब्वियसली लास्ट सेशन इसमें डिटेल में बात हुई थी, बट थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स मैं भी दे सकता हूँ. इसमें मैं एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता हूँ. सो फॉर द करीम जॉब आई वाज एक्चुअली कॉन्टैक्टेड थ्रू लिंक्डइन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. सो उसमें मैंने अप्लाई नहीं किया था, लेकिन मुझे उसके लिए जो है करीम ने अप्रोच किया लिंक्डइन से. एंड दिस इज क्वाइट नॉर्मल आजकल के दौर में कि इट डजंट हैव टू बी दैट यू अप्लाई फॉर अ जॉब. अगर आपका प्रोफाइल इतना बिल्डअप हुआ है, आपके प्रोफाइल की इतनी ट्रैक्शन है, आपकी फॉलोइंग है, और आप एक्टिवली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू अ लॉट. मैं जब सिंगापुर गया था एक फाउंडर्स प्रोग्राम के ऊपर, जहाँ पे हम लोगों ने अपना स्टार्टअप बेसिकली लॉन्च किया था, तो वहाँ मैंने जाके इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था दैट एनीबडी दैट यू नीड टू कनेक्ट विद, वेदर दे आर इन्वेस्टर्स, वेदर दे आर स्टार्टअप गुरुज, फाउंडर्स, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स, तो वहाँ पे लोग दे यूज्ड टू सर्च दोज पीपल ऑन लिंक्डइन फर्स्ट. लिंक्डइन पे, और 99.9% ऑफ द टाइम दैट पर्सन वाज ऑन लिंक्डइन, और फिर लिंक्डइन से उसको मैसेज करके आप उससे कनेक्ट करते थे. सो आई लर्न दैट लिंक्डइन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. हम लोगों का थोड़ा सा इसके अंदर ये है कि
the time we spend on Facebook, on our personal profile, in sharing different stuff related to daily lives, politics, and entertainment, rather than doing that, if you build up your profile on LinkedIn and start posting what are the things you are interested in, many of these things are connected to the questions that I have told you earlier, usse industry se related, job role se related. So you will start building up your following, you will start making up your connections. So the career marketing tools, yes, they are important. उसके अंदर obviously LinkedIn आ जाता है, and then resume की भी एक optimization होती है. So if I talk about recruiters, usually they take less than 10 seconds to scan a resume. So it's important to keep a consistent design and clean format to highlight your unique and important skills. इसके ऊपर I run a channel by the name Gus Pro, जिसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है. You guys can go and watch it, how to build up your resume. But उस यहाँ पे मैं अगर उसके कुछ pointers आपको shortlist करके बताऊँ, so resume should be one pager ideally. I've seen people making resume of 2 pages, 3 pages, 4 pages, which is not required. ठीक है, आपकी मुझे ये जरूरत नहीं है कि आपने जहाँ जहाँ काम किया हुआ है वहाँ की JDs के हिसाब से एक एक पॉइंट को आप मुझे एक्सप्लेन करें अपनी CV के अंदर. अगर मुझे उस रोल से रिलेटेड कुछ पूछना होगा तो I will ask you in the interview. So ये चीज के ऊपर फोकस करना जरूरी है कि rather than putting everything out there in resume, put summarize form in your resume, so उसके ऊपर आपके साथ इंटरव्यू में बातचीत हो सके, right? And make it short, make it one page ideally. और उसके बाद जिस इंडस्ट्री के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो JD जहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन रोल के साथ जहाँ पे आपने काम किया हुआ है लिख रहे हैं, उसके अंदर उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कीवर्ड्स लिखें. और अगर उस जॉब की आपको डिटेल मिल सकती है कि उस जॉब में रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वहाँ से भी आप कीवर्ड्स फेच कर सकते हैं. और फिर एक चीज मैंने नोट की है कि लॉट ऑफ पीपल आर मेंशनिंग दीज सॉफ्ट स्किल्स लाइक आई एम हार्ड वर्किंग, मैं टाइम पे काम करता हूँ, यू नो, स्टफ लाइक दैट. आई डोंट नीड टू नो दैट. ठीक है, ये आपको CV में बताने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर कोई कॉन्क्रीट स्किल्स हैं लाइक प्रोग्रामिंग हो गई, फोटोशॉप एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल्स हो गए, या इस तरह की चीज, इवन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आई थिंक इट्स सिंपली नॉट needed to be mentioned. I believe that everybody right now in this day and age knows one way or the other how to use Microsoft Office. तो हार्ड वर्किंग लिखना भी जरूरी नहीं है. अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं लिखेंगे, it doesn't mean कि आप हार्ड वर्कर नहीं है, right? So that all is related to the content that is going to be discussed between interviewer and the candidate. So इस चीज के ऊपर थोड़ा सा अगर आप गौर करें और उस हिसाब से रिज्यूमे को बनाएं, तो it will help you a lot. फिर आ जाता है कवर लेटर. So cover letters are important too, and often can help you help set you apart from the competition. But the thing is कि क्या cover letter जरूरी है या cover letter जरूरी नहीं है. So cover letter में ये है कि if you are really interested in a particular job, then definitely go for the cover letter. And then cover letter को customize भी करना पड़ता है हर जॉब से. जो आप जॉब के लिए अप्लाई करें उसके हिसाब से उसको थोड़ा कस्टमाइज करें. डू नॉट मेक अ जेनेरिक कवर लेटर टू सेंड विद योर रेज्यूमे. इसी तरह से रेज्यूमे के ऊपर भी थोड़ा आपको शायद उसको कस्टमाइज और ट्वीक करना हो अकॉर्डिंग टू ईच जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर. इट शुड नॉट बी कि एक ही रेज्यूमे बना के आपने सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया. सो दीज आर सम टूल्स एंड सम ऑप्टिमाइजेशन दैट यू कैन डू that can help you with your job hunt. सही हो गया, बिल्कुल. Thank you so much, Ghazanfar, for answering this question. Next question would be कि networking skills, how important are they? मतलब मैं एक conference पे जाती हूँ and I meet people over there. How do I need to make मुझे अपने right professor से मिलना, right person से network बनाना, कैसे बनाना चाहिए? Then LinkedIn networking skills, वो क्या होते हैं और वो किस तरह से आप कर सकते हैं? Networking is extremely important in my opinion. I actually talked about it in our last session as well. Since many open jobs are never posted online, so you have to market yourself effectively to land your dream job. So you must engage in networking activities rather than simply applying to job posting. तो networking skills किस तरह से बनाई जा सकती हैं? Networking skills आप इस तरह से बना सकते हैं. अगर मैं बात करूँ अर्ली ग्रेजुएट्स की, जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, या यंग प्रोफेशनल्स की, सो यू मस्ट हैव एन एलुमनाई नेटवर्क.
स्पेशली अगर ग्रेजुएट्स की बात करें तो नेटवर्किंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट नेटवर्किंग एक्टिविटीज एंड इट कैन यील्ड ट्रेमेंडस रिजल्ट्स. Most universities, I think, have established websites or portals designed to connect alumni. तो उसके अंदर आप देख सकेंगे कि आपके सीनियर्स जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज के अंदर डिफरेंट रोल्स में ऑलरेडी लगे हुए होंगे. तो उन लोगों को कनेक्ट करें, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, एंड दे probably are going to help you in terms of finding the right career or a right job. इसके अलावा if I talk about LinkedIn के ऊपर you will if there is a job that you are interested in, try to find the recruiter that has posted that job, try to connect with them, add them in LinkedIn, send them an email in LinkedIn, उनको message करें, throw them a message and tell them why you are interested and share your experience. So it might work, it might not work, but this is definitely going to help. Then regular posting on LinkedIn, उसकी वजह से आपकी visibility create होगी. What you can do is you can Google on different posts related to current affairs जिसके ऊपर discussions चल रही हैं. Google Trends के ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि इस वक्त top trends क्या हैं. आप keywords डाल सकते हैं, career, professional, resume, इससे related keywords क्या आते हैं. उन कीवर्ड से रिलेटेड फिर आप पोस्ट सर्च करें गूगल के ऊपर, फिर उन पोस्ट को लिंक्डइन के ऊपर आप पोस्ट करें. So this is something that you have to build up slowly and steadily. It is not going to be कि जी आज मैंने पोस्टिंग शुरू की है तो कल से मेरा नेटवर्क बिल्डर होना शुरू हो जाएगा. It will take some time, but essentially people will start noticing you. You will have an online identity. तो इसको करने से जो है नेटवर्किंग की आपकी स्किल्स बेहतर हो सकती हैं. फिर इवेंट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के. देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स out there that you can search on LinkedIn as well as on Facebook as well, professional groups. Add yourself in those groups and be active on those groups as well. वहाँ से भी आप लोगों के साथ connect कर सकते हैं. And then there are a lot of job fairs that happen. A lot of companies do that. Even Kareem does that. And several universities go on those job fairs, try to meet people and interact and connect with them as well. तो इस तरह से थोड़ा सा आप अपने आप को ग्रूम भी करते हैं लोगों से मिलके, और आप अपने नेटवर्क को थोड़ा सॉलिडिफाई भी करते हैं. ठीक. Thank you so much, Ghaznfar, for answering this question. Acha, let's talk about how to when you're a fresh graduate or you're shifting, if you want to leave your right now job, you feel आपको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, या at the center point यहाँ पर आपको न्यू जॉब ढूंढनी है, तो वहाँ पर how do you list a company, how do you look for a company that suits everything that you, जो आपने अपने बारे में क्वालिटीज जो आपने डिफाइन कर दी हैं आपके प्रीवियस आंसर्स से, वो किस तरह से वो कंपनी लिस्ट करे बंदा? कंपनी लिस्ट डेफिनेटली दिस शुड बी योर टारगेट एज वेल इनिशियली कि किन कंपनीज में आप इंटरेस्टेड हैं. एंड सबसे पहले तो आपको उसमें ये देखना चाहिए कि बहुत एक्सटेंसिवली बड़ी लिस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर आपसे मैनेज भी नहीं हो पाएगी. सो आई पर्सनली रिकमेंड somewhere around 25 to 50. Keep your list around that for better focus, and उसको भी continuously आप update करते रहें based on what sort of feedback you get from those companies as well. So one of the platform that I essentially use to find about any company that shows interest to me कि यार कोई role आया और मुझे वो interesting लग रहा है और I have to apply for that particular role, rather than applying for it, I am definitely going to study about that company as well, because उस company के साथ मैंने next 2, 3, 5 साल काम तो करना है. So उसके लिए जो सबसे अच्छा tool है वो मेरे ख्याल से Glassdoor है. So Glassdoor, if you haven't heard about it, is a platform जहाँ पे professionals जाके they give their comments and feedback about the company they are working in. Anonymous भी हो सकते हैं और आप अपने नाम के साथ भी वो share कर सकते हैं. So search the company that gives you an interest, या उनकी 2019, 2018 की रिपोर्ट पढ़ लें कि टॉप एम्प्लॉयर्स ऑफ द वर्ल्ड क्या हैं. आई थिंक कीप ट्रकिंग को 2019 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टॉप एम्प्लॉयर का अवार्ड ग्लासडोर की तरफ से मिला था, विच इज़ ऑल्सो पाकिस्तानी स्टार्टअप. सो वहाँ से आप कंपनी शॉर्टलिस्ट करें. फिर उन कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के वहाँ पे कमेंट्स होते हैं, उन कमेंट्स को देखें जिसमें प्रोज एंड कॉन्स उन्होंने मेंशन किए हुए होते हैं कि इस कंपनी में काम करने के प्रोज क्या हैं, इस कंपनी में काम करने के कॉन्स क्या हैं, राइट, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा यार, दिस इज समवेयर दैट
culture जो है मेरे साथ connect करता है, या they pay good, and this is somewhere that I can work, right? So Glassdoor is a very good and very effective tool that can help you target that company list. Another great option is to ask your academic and professional network as well as friends and family to get their suggestion on great companies to work for. उसमें ये है कि once you complete your target employer list through Glassdoor, share it with your network, including family, friends, co-workers, colleagues, and see if anyone you know has any contacts उस company के अंदर जो आपको उससे contact के through introduce करवा सके. So if you find a connection, politely ask them if they could facilitate an introduction with that particular person. और अगर वो हो सकता है तो that is a different approach to try for that particular job. Even if there is no job, sometimes it happens that if you get connected with the relevant person and they interview you, they might hire you even if there is no role. So इस तरह का भी experience हुआ है. So rather than waiting for it कि यार जब job निकलेगी और मैं तब उसमें apply करूँगा, so this is a sort of a strategy that you can utilize. So I believe rather than being waiting for something, you should be more proactive. Reactive से ज़्यादा proactive हो. आप हर चीज़ में जब proactive होंगे तो आपके लिए ज़्यादा opportunities खुलेंगी. So creating a target company list, Glassdoor, visit that and start shortlisting your companies from there. Thank you, Ghaznafer, for sharing Glassdoor with us. Let's talk about personal branding. मतलब CV तो हो गई, resume भी हो गया आपका, आपके LinkedIn प्रोफाइल भी होगी. Personal branding क्या होती है और personal branding के tools क्या होते हैं? Again, a good question. Personal branding. So 3 से 4 साल पहले की बात है, or maybe more. I was actually being interviewed in Pakistan Tobacco at that point in time. Sales की position थी. तो there was a person sitting next to me, और वो साहब जो हैं वो Shell के अंदर उस वक्त काम कर रहे थे. So I was having a discussion before the interview with him कि आप कहाँ पे होते हैं, stuff like that, and he actually told me कि now the times have changed. Rather than you associating yourself with a brand out there कि मैंने let's suppose Shell में काम करना है या Pakistan Tobacco में काम करना है या Unilever में काम करना है, you make yourself a brand. यानी कि लोग गजनफर इकबाल को समझें और जानें और पहचानें और गजनफर इकबाल को मांगे, rather than आप Shell को मांगे, Shell गजनफर इकबाल को मांगे. So that actually impacted me a lot. कि यार एक पर्सनल ब्रांडिंग भी कोई चीज होती है, ठीक है, और हम कर सकते हैं पर्सनल ब्रांडिंग. इट इज एन इजी थिंग टू डू. द टाइम वी स्पेंड ऑन फेसबुक, द टाइम वी स्पेंड ऑन टिकटॉक एंड ट्विटर डूइंग endless scrolls and discussing events and people, rather than doing that, you should focus on building your own personal brand. Now how do you do that? सबसे पहले have a professional photo taken and use it across all your online profiles. So what that does is this promotes brand consistency. ठीक है, एक प्रोफेशनल फोटो लेके उसके साथ आप स्टार्ट लें, उसमें आप लिंक्डइन के ऊपर तो डेफिनेटली उसको लगाएं, और फिर उसको फेसबुक ट्विटर के ऊपर भी लेके जाएं अगर ट्विटर के ऊपर हैं. सो यूट्यूब पे अब आई क्रिएटेड दिस चैनल कॉल्ड गज प्रो, and I sort of help people in terms of giving them tips and tricks regards to how they can build themselves professionally, career counseling. And I do it not because I will start making some money out of it. I do it as a hobby, and I do it to create my own personal brand as well, so people know me as well. I create it to get myself the exposure. So if you think that you are that kind of a person, then make a YouTube channel और वहाँ पे अपना प्रोफाइल बिल्डअप करें, एंड यू क्रिएट क्रिएटिव वीडियोस, डेमोन्स्ट्रेट योर एक्सपीरियंस, उसमें लिंक्स एम्बेड करें, ठीक है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करें, एंड टॉक अबाउट व्हाट यू लाइक टू डू और व्हाट यू आर डूइंग, शेयर योर एक्सपीरियंसेस, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूटिलाइज यूट्यूब फॉर. Then comes websites and blogs. So if you are an experienced writer, and then I think you should create a blog or a website, rather than building up these long posts on WhatsApp. Those long posts should be converted into articles that should be posted on your personal blog and your website. Even if you are not an experienced writer, you are somebody who lack that writing skills, you can start
writing them and start learning them as well. Then comes Google Plus. So Google Plus इतना widely used नहीं होता, I agree, but what it helps with, अगर आपका Google Plus पे प्रोफाइल हो, तो जब let's suppose गजनफर इकबाल का नाम आपने Google पे सर्च किया और अगर आपका Google Plus पे प्रोफाइल है, तो it helps Google better to search you and bring you on top of the page. So search engine optimization के एंगल से अगर आप देखें तो Google Plus पे अपना एक प्रोफाइल जरूर बना लें, it will definitely help you. फिर आ जाता है फेसबुक के ऊपर हम लोग पर्सनली तो काफ़ी कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे सेक्शंस आ जाते हैं कंप्लीट द वर्क एंड एजुकेशन की बात आती है, कंप्लीट द वर्क एंड एजुकेशन सेक्शन, वो अक्सर लोगों ने खाली छोड़े हुए होते हैं. आई वुड सजेस्ट दैट यू ऐड योर एजुकेशन एंड यू ऐड योर वर्क एक्सपीरियंसेस ऑन फेसबुक, क्योंकि कई रिक्रूटर्स जो हैं वो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं दे शोड द इंटरेस्ट, दे सर्च यू ऑन फेसबुक एज वेल. सो जब वो आप फेसबुक पे देखें तो एक उनको एक अच्छा प्रोफाइल वहाँ पे नजर आए. सो दैट इज समथिंग. सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं. लिंक्डइन के ऊपर तो हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बात कर ली है, तो ऑब्वियसली लिंक्डइन तो होना ही होना चाहिए. देन देयर इज ट्विटर एज वेल. ट्विटर के ऊपर भी रेगुलरली आप पोस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट हैशटैग्स के साथ आप पोस्ट कर सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें जो है ना इंटरकनेक्टेड हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ऑनलाइन प्रोफाइल को बिल्डअप करती हैं और एक कंसिस्टेंसी लाती हैं आपके ब्रांड में, जो आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करती है. बल्कि Gazanfar, when you're applying abroad, I know as far as my own personal experience, मैंने कई दफ़ा अपना जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स आई हैव सेंट, मतलब मैं फॉर्म्स के साथ अपने वो लिख रही होती हूँ ऐड करके ना, ऐड राबेल है बुखारी, तो वो काफ़ी मांगते हैं. तो अगर वो मांगते हैं तो इसका मतलब वो इसलिए मांग रहे हैं कि उन्होंने देखना है. तो दैट मतलब वो तो ये भी एक होता है कि आपने अपनी प्रोफाइल को क्लीन रखना है. ज़्यादा अच्छा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि प्रोफाइल के ऊपर ज़्यादा अगर इफ़ यू आर गोना बी वेरी आप एक पार्टी की बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं या यू आर गोना बी वेरी ओपिनियनेटेड अबाउट समथिंग, तो उसको थोड़ा सा एक अच्छे से एक मुहज़्ज़बाना तरीके से बयान करें, ताकि कोई भी कंपनी ये आपको देख के कैजुअल बिहेवियर में देख के वो आपको वो एग्री ना कर रहा रिक्रूटर आपकी बातों से, तो वो ये आपको कह दे कि यार ये तो बंदा ही नहीं मुझे पसंद, ना तो मैं नहीं रखूंगा. तो मतलब वो पीपल शुड लाइक यू एंड दैट्स व्हाट इट मीन्स टू मेकिंग योर प्रोफाइल ब्रांडिंग के बारे में ऐसे. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट गज़नफर के जॉब्स. तो पब्लिक एक पुराना ज़माना होता था, जॉब्स न्यूज़पेपर में पब्लिश होती थी. अब ज़माना बदल गया है. नाउ देयर आर वेबसाइट्स which are publishing. There's jobs.pk, I know there's one, and then there's LinkedIn. यहाँ पे लोग डायरेक्टली लिंक्डइन पे वो जॉब्स पब्लिश कर रहे होते हैं. देन देयर आर पीयर्स हु टेल अस अबाउट जॉब्स. व्हाट एल्स टिप्स एंड ट्रिक्स यू कैन टॉक टू हमें बता सकते हैं, जिनके टॉक टू अस अबाउट कि जो दोज आर प्रोएक्टिव, मतलब आप जॉब ढूंढे नहीं, मतलब सॉरी जॉब की लिस्ट आए तभी आप उस जॉब को देखें, मुझे प्रोएक्टिवली आप उसे सर्च कर सकें. उस तरह की कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं. हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली. मैं पहले भी जिस तरह से बात की है कि यू शुड बी प्रोएक्टिव रादर देन बीइंग रिएक्टिव, तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले तो आई थिंक लिंक्डइन अगेन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू यूटिलाइज दैट, जहाँ से आप एक तरह का बैकडोर चैनल अपने लिए खोल सकते हैं. सो यूज लिंक्डइन्स एडवांस सर्च पेज, टाइप द कंपनी नेम इनटू द कंपनीज फील्ड एंड सर्च. तो उसके अंदर डू यू सी एनीवन whom you are connected to at that company. इसी तरह से जब आप जॉब को भी सर्च करें अगर लिंक्डइन के ऊपर, तो उस जॉब के साथ नीचे आ रहा होता है कि अगर कोई बंदा आपका वहाँ जानने वाला ऑलरेडी काम कर रहा है. If so, there is somebody there. Make contact and politely ask if there is anything that he or she could do to help you with that particular job application. और आप उनको अपना फॉरवर्ड कर दें रिज्यूमे. फिर जिन लोगों ने ऑलरेडी जॉब पोस्ट की हुई है, usually these are people that work in the HR of that particular company. You can contact them directly and ask for it as well. इसके बाद जो और चीज़ मैं आपको बताऊं उसमें यह है कि create your email signature. जो आपने बात की कि कई जगह पे आप अप्लाई करती हैं और आपको जो है वो आपसे सोशल मीडिया के डिफरेंट हैंडल्स मांग रहे होते हैं. तो जब आप एक अपना email signature बनाएं, तो उसके अंदर be sure to use an email signature that incorporates your name, phone number, email address and a link to your LinkedIn profile. आजकल आपने देखा होगा काफ़ी ऑनलाइन जो रिक्रूटर साइट्स हैं वहाँ पे आपका LinkedIn का प्रोफाइल फैच कर रहे होते हैं. rather than uploading your resume,
you can connect your LinkedIn directly and get everything, every detail over there as well. So keep your LinkedIn updated and add that particular LinkedIn link of your profile in your email signature as well, which you send to the recruiters, which you send to the people that you search through LinkedIn or Facebook. उसके बाद जो एक और चीज़ है, there is a platform called feedly.com, feedly.com. Feedly.com is basically जहाँ पे आप different websites के RSS feeds लगा सकते हैं. So rather than going to that particular website or going to number of these websites to read about these particular articles or posts, वो सारे के सारे आपके Feedly के एक platform के अंदर आ जाते हैं. So find these websites in terms of recruiting websites, in terms of your industry related websites, and add them in your Feedly, and daily 1 घंटा या आधा घंटा अपना निकालें and go through them and see what are the updates happening all around you. और वहाँ से आपको jobs वगैरह के बारे में भी पता चलेगा. So you create that platform and I think it is really effective. उसके बाद अगर मैं hacks की बात करूँ तो there are times के जब आप interview के लिए select होते हैं and there is a person that is taking your interview, that person definitely should have some sort of an online identity, right? So जब उसके पास एक online identity है तो आप जाके उसको थोड़ा सा search करें. अगर Facebook पे उसका प्रोफाइल है, try to see what sort of post उसने लगाई हुई हैं, that person has put on, what sort of interest they have. Go through their LinkedIn and see इससे पहले उन्होंने कहाँ काम किया हुआ है, what sort of professional experience they have. This is going to help you build up a prior relationship with that particular person when you go for the interview. So you can see there are some interests that will match with your interests. So during the interview, you can bring that up in the discussion and make it some sort of informal discussion that can help you lock in that job quite easily. And I think personally it helps me with building up confidence as well. If I know a person in a way कि मुझे उसके नाम से ज़्यादा पता हो कि उसकी शक्ल क्या है और वो पर्सन करता क्या है ज़िंदगी के अंदर, so थोड़ा सा एक ह्यूमन कनेक्शन बन जाता है आपका, तो आप इजीली उस बंदे से बात कर सकते हैं. वो किस इलाके से ताल्लुक रखता है, वो मतलब अक्सर होता है ना कि अगर वो फैसलाबाद से है तो अगर आपका कोई दोस्त फैसलाबाद का, तो आपको पता है कि भी मैंने उसके साथ किस तरह से बात करनी है कि वो अप्रिशिएट करेगा, वो थोड़ा सा उसे पसंद आएगी बात. वो इस्लामाबाद से है तो इस्लामाबाद के पीपल हैव अ स्टाइल ऑफ टॉकिंग. हर इलाके का एक तरीका होता है एक बात करने का एक बंदे का, तो वो आप उस चीज को ध्यान में रख सके, उस बंदे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, एंड जस्ट मेक्स इट इजियर इंटरव्यू में. Definitely. Right? Again, building up that relationship, finding those common interests, and those common interests are definitely going to help you. फिर एक और चीज आ जाती है कि some people make this mistake of using their official email address wherever you are working right now. You use that particular official email address to apply for the job and for all the email coordination that keeps happening as well. This is a big mistake. Don't do that. Have a personal email address to put in the resume as well as to apply for a job. And I would suggest to अगर आप you are just starting your career, और जिस तरह से हमने पहले बात की कि targeting the company list, jotting down all these short questions to find the relevant companies and the job roles that you are interested in. So you are embarking on this entirely new journey. तो उसके लिए I would suggest making a separate email address than your personal email address as well. जो वो सेपरेट ईमेल एड्रेस होगा वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने की में मदद देगा अपनी सारे जॉब एप्लीकेशंस को, क्योंकि पर्सनल ईमेल एड्रेस में आपकी पर्सनल ईमेल्स भी आ रही होती हैं और फ्रेंड्स की ईमेल्स भी आ रही होती हैं. सो इट्स लॉट ऑफ clutter that you have to go through on daily basis. Rather than doing that, सब्सक्रिप्शंस होती हैं, वो आ रही होती हैं. एग्जैक्टली, स्पैम्स आ रहे होते हैं. तो एक अपना सेपरेट ईमेल एड्रेस बनाएं और उस सेपरेट ईमेल एड्रेस के थ्रू जो है आप जॉब हंट के लिए अपना जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करें, तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे. बेहतरीन. चलें, आई गेस we had a really meaningful discussion. Any other tips and tricks you have for our audience, Ghaznfar? You can shoot them right now. टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर तो काफी डिस्कशन मेरा ख्याल है मैंने कर ली. आई थिंक देयर आर सम थिंग्स सॉर्ट ऑफ के जो चीजें आपको नहीं करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं
So there are certain things that you should stop doing. Should not do One it. of You should not do it. Yes, especially apply for every job you come across, right? अब आप इतने डेस्परेट ना हो, इतने फ्रस्ट्रेटेड ना हो कि हर जॉब में, हर कंपनी में आप कॉन्स्टेंटली जो है ना अप्लाई करना शुरू कर दें. दिस शोज डेस्परेशन, this shows weakness. This doesn't help build up your profile. So if things are not working out right now, be patient. Give them time. I can assure you, if you continue down that path, you will eventually get a job. But don't ruin all that hard work that you have been through by going in a direction where you are so out of क्या कहना चाहिए, in terms of anxiety and stress, that you are like so desperate that you start applying. I know sometimes job is a necessity, but still you are building your profile up. So कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको long run में impact कर सकती हैं. तो don't apply for every job that you come across. इसके बाद एक चीज जो है, आप अपनी CV में, आप अपने प्रोफाइल में अगर you fail to deliver a clear message. So employers are interested in where you have added value, not everything you have ever done. ठीक है? तो उनके लिहाज से जो रोल जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या वैल्यू एडिशन है. हाँ, आपने पहले जितना मर्जी परफॉर्म किया, एक्सेप्शनली परफॉर्म किया, दैट इज ऑल गुड, दैट गॉट यू ऑन दैट सीट इन फ्रंट ऑफ मी फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू. बट नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू help us with in adding the value towards the company that you have applied for. So be clear, practice that, read about that particular industry. उस industry में अभी currently क्या हो रहा है, उस company, जिस company में आप apply कर रहे हैं, उस company की website को thoroughly go through करें. People just apply for the role, they don't go through the company. अगर मैं let's suppose Telenor में apply कर रहा हूँ, तो मैं टेलीनोर के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में होगा आई नो अबाउट टेलीनोर, इट्स अ टेलीकॉम कंपनी, इट्स अ नॉलेज बेस्ड कंपनी. टेलीनोर का विजन क्या है, टेलीनोर का मिशन क्या है, डज इट मैचेस विद माय विजन एंड मिशन, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो वो इंटरव्यू में भी हेल्प करते हैं. किसी कवर लेटर में भी आप उनको डाल सकते हो, राइट? हाँ, डेफिनेटली जो विजन है, बहुत अच्छी आपने बात की. विजन है उनका मिशन है, वो अभी कहाँ पे खड़े हैं, व्हाट आर देयर फ्यूचर प्लान्स. These things can definitely help you in the interview as well. Sometimes the interviewer is going to ask you that, what is the vision of our company, and you go clueless, you don't know that, right? So definitely go through their company website, and that is going to help you as well. फिर कुछ लोग होते हैं कि they take rejection personally. कभी भी rejection को personally ना लें और उसको अपने दिलो दिमाग के ऊपर मत बिठाएं. It happens. एक जॉब रोल है और उसके लिए लेट्स सपोज 10 या 100 लोगों ने अप्लाई किया, तो वो ऑब्वियसली एक बंदे को ही मिलेगा. तो it has nothing to do with your performance or your profile or your background. It is just as it is. There is just one job role and one person is going to get it, right? So don't take rejection personally. Keep moving forward. Again, अगर आप रुक गए तो फिर आप रुक गए. Doesn't matter. मैंने शुरू में भी कहा था कि जॉब हंट इज लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन. इट्स नॉट इजी. बहुत कम होता है कि आप अप्लाई करें, इंटरव्यू आए और आप सिलेक्ट हो जाएं. यूजुअली इट टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम. हाँ, सो डोंट टेक रिजेक्शन जो है पर्सनली इन दैट सेंस एज वेल. सो दीज आर फ्यू ऑफ द जी क्योंकि मतलब रिस्क तो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, और बेहतर यही है कि आप कोशिश करते रहें. हारने के बाद भी हारने को हार नहीं बल्कि जीत समझें, कि आपके लिए एक नया रास्ता खुल गया, जिस डायरेक्शन आप डिफरेंट ले सकते हैं. आप डिफरेंट कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं. मे बी वहाँ पे जो जॉब है वो आपकी करियर ग्रोथ को बहुत आगे ले जाए. एंड जस्ट यू जस्ट कीप डूइंग, कीप स्विमिंग. हाँ जी, डेफिनेटली. अब वो एक हमारे बड़े बात करते थे कि हरकत में बरकत है. एंड आई कीप सेइंग दैट कि जब तक आप हरकत करते रहेंगे तो डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग टू हैपन and opportunities will keep striking at your door. But if you stop yourself, seize yourself, and are going to just sit down and not do anything, then nothing is going to happen to you. पानी में भी जब आप तैरना सीखते हैं तो you have to move your hands, move your legs as well. ठीक है, अगर आप इस तरह से स्टैटिक हो जाएं तो you are going to go down.
So never जाएंगे। take पर anything in terms of rejection personally. बिल्कुल, और अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मैं उसी की उन लोगों की मदद करता हूँ जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो आप पहले अपने आप को मदद करें। यू फाइंड, आप ये हमारी वीडियो देखें, यू गेट द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर जॉब हंटिंग, यू अप्लाई विद द राइट tools, you make a personal brand, CV बनाए, LinkedIn account में networking skills हासिल करें, and when you're right at the top of everything, then इंशाल्लाह क्यों नहीं आपको जॉब जरूर मिलेगी, and it will be the perfect job for you इंशाल्लाह. Thank you so much Ghazanfar for joining us again. um, Thank you so much ji. yeah, thank you so much. Thank you so much for joining. Thank you so much guys for joining us. You audience हमारी जो है, you guys keep us motivated to come live every day with a new speaker, with a new topic. Thank you so much for joining us again. Allah Hafiz. अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, बाहर मत जाइएगा, stay safe, stay home, and Allah Hafiz. Allah Hafiz ji. Allah Hafiz.